Yes, sir. Yes, I think we can start. है ना? Yeah, I think Mr. David is. Yeah, I'm there. I'm there. Yeah, sir is there. Yeah. Oh. Yeah. So, okay, friends, welcome you all. I would like to welcome you all on the behalf of Indian Blind Sports Association for joining this webinar. It is a joint venture of Blind Relief Association and Indian Blind Association. I would also like to congratulate to Indian Blind Sports Association Executive Committee and Blind Relief Association Executive Committee. In a small recap, I would like to tell you about the IBSA. The blind sports has been started back in 1982 when the first sports meet was organized by Blind Relief Association. It is worth noted that it was the time when Asiad was held in India only. In 1986, the Indian Blind Sports Association formally organized, and after that we are organizing various sports meets time to time. Indian Blind Sports Association is a APEC body of International Sports Federation, and we are committed to introduce new games such as Risby, women blind kabaddi, goal ball, tennis, and all. And we have several participants who already participated in international tournaments such as Asiad and Olympics. Today, we have very well-known and renowned two panelists who are going to tell you how we can do the technique exercise and how we can maintain our fitness during this lockdown. So one of them is Dr. Satyapal, who is Dronachari awardee in 2012, and presently he is serving Acharya Narendra Dev College as an assistant professor. He, with his coaching, 41 medals at the international levels secure his students who are getting the coaching under the Dr. Satyapal. And there is hard to count the medals which were secured in national and state level by his students. Followed by, we have Ankur Dhama, who also got Arjun Award in 2018, and he also awarded by Social Justice and Empowerment Ministry, Government of India, best sports player of the year in 2019. Back, he also secured 2 bronze and 1 silver medal in Incheon, South Korea at Asiad. He is the first Olympian among our category. That means he is the first visually impaired who participated in Olympics, Rio de Janeiro. He is also the first totally blind who got Arjun Award. So now I would like to call upon Mr. Dr. Satyapal, who will proceed further. Before doing this, I would like to request you all, during the our webinar, if somebody has any question, they may put their question at chat box, and at the end of the session, at the time of the Q&A session, we'll take that your questions, and also you will be invited for asking the question if you have any doubts and question. So please wait during the lecture, and if you have any doubt, question, query, you can put at chat box. Over to Dr. Satyapal. नमस्कार सबको, मेरी नमस्ते, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम डॉक्टर सत्यपाल सिंह है। मैं आपको आज कुछ पैरा एथलेटिक्स, पैरा स्पोर्ट्स के बारे में बताना चाहता हूं। क्या सबको स्क्रीन पे नजर आ रहा है जो देख सकते हैं? हेलो यस सर, दिखाई दे रहा है सत्यपाल सर, दिखाई दे रहा है। हाँ जी। ओके, थैंक यू। इंडियन ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन, जैसे कि रामदास जी ने बताया, थोड़ा इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरी दुनिया एक
महामारी से गुजर रही है। इस दौरान में हम स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स एजुकेशन एक ऐसी जगह है जहाँ पे मास गैदरिंग होती है, लोग डेली एक दूसरे से मिलते हैं, और ये बीमारी ऐसी है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस टाइम में हमारे एथलीट्स स्टेडियम या स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं जा पा रहे हैं, खासकर ब्लाइंड एथलीट्स जिनको कि बिना टच के या बिना सोशल डिस्टेंसिंग के वो स्पोर्ट्स नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ आपको घर में आप अपने आप को कैसे फिट रखें और कैसे आने वाले टाइम में जब स्पोर्ट्स होंगे तो हम कैसे अपने आप को बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे, इस बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। सबसे पहले पैरा स्पोर्ट्स, मैं जानता हूं कि कुछ बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं जिनको बहुत कुछ पता होगा पैरा स्पोर्ट्स में। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पैरा स्पोर्ट्स के बारे में बहुत ही कम जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो मैं छोटी चीज से लेके थोड़ी बड़ी चीज तक कवर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले, व्हाट इज पैरा स्पोर्ट्स? पैरा स्पोर्ट्स है क्या? पैरा स्पोर्ट्स आर स्पोर्ट्स प्लेड बाय पीपल विद द डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। पैरा खेल है क्या? पैरा खेल एक दिव्यांग जनों द्वारा खेले जाने वाले खेल हैं जिसमें शारीरिक बौद्धिक अक्षमताएं शामिल हैं। अब ये कौन कौन से खेल हैं जो पैरा ओलंपिक, जैसे ओलंपिक है ऐसे ही पैरा ओलंपिक भी होते हैं। तो पैरा ओलंपिक्स में हमारे विजुअली इंपेयर्ड के लिए कौन कौन से गेम खेले जाते हैं, या पैरा ओलंपिक्स में कौन से गेम खेले जाते हैं? पैरा ओलंपिक्स, दो पैरा ओलंपिक होते हैं, एक समर पैरा ओलंपिक, एक विंटर पैरा ओलंपिक्स। तो समर पैरा ओलंपिक्स में टोटल 22 पैरा स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, जिसमें कि 8 स्पोर्ट्स ऐसे हैं जिसमें विजुअली इंपेयर्ड एथलीट पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि एथलेटिक्स, साइकिलिंग, एक्वेटेरियन, फुटबॉल, 5 ए साइड, गोल बॉल, जूडो, रोइंग एंड स्विमिंग। ये समर ओलंपिक्स में विजुअली इंपेयर्ड द्वारा खेले जाने वाले खेल है। देन इसी तरह से विंटर ओलंपिक्स में 6 गेम खेले जाते हैं, जिसमें से 3 गेम विजुअली इंपेयर्ड के द्वारा खेले जाते हैं, जिसमें एक क्रॉस कंट्री है, बाइथोथन है, स्केटिंग है। तो ये स्पोर्ट्स ओलंपिक लेवल पे खेले जाते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, पैरा एथलेटिक्स। मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूं कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा पैरा स्पोर्ट्स में पैरा एथलेटिक्स ही खेला जाता है, और मैं खुद एक पैरा एथलेटिक्स का कोच हूं, तो मैं पैरा एथलेटिक्स के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। और ये गेम एक ऐसा गेम है जिसमें कम से कम फैसिलिटी की जरूरत होती है, कम से कम इक्विपमेंट की जरूरत होती है, और आप इसको ऐसे लॉकडाउन के टाइम में भी अपने घर में रह के अपने आप को फिट कर सकते हैं, अपने आप को आने वाले कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पैरा एथलेटिक्स है क्या? पैरा एथलेटिक्स एक इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी द्वारा ही चलाया जाता है, और पैरा एथलेटिक्स में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग। अभी रिसेंटली जो रियो ओलंपिक 2016 में जो हुए थे, उसमें पैरा ओलंपिक्स में 147 कंट्री ने पैरा एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें कि 1147 एथलीटों ने पार्टिसिपेट किया था। पूरे दुनिया में 150 देश ऐसे हैं जो पैरा एथलेटिक्स खेलते हैं, जिसमें कि 2016 में हमारे इंडिया का फर्स्ट पैरा विजुअली इंपेयर्ड एथलीट अंकुर धामा, जिसने पहली बार पार्टिसिपेट किया था। देन
उसके बाद पैरा स्पोर्ट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पैरा स्पोर्ट्स एक दिव्यांग जनों द्वारा, डिसेबिलिटी जो डिसेबल लोग हैं उनके द्वारा खेला जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि हर डिसेबल के अंदर एक जैसी डिसेबिलिटी होगी, तो उसको एक ग्रुप बनाने के लिए एक इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स फेडरेशन ने क्लासिफिकेशन, एक उसमें क्लासिफिकेशन के द्वारा उनका ग्रुप बनाया जाता है। तो क्लासिफिकेशन है क्या? क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें सिमिलर डिसेबिलिटी के लोग एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं। पैरा एथलेटिक्स में भी एक ऐसा ही क्लासिफिकेशन होता है। पैरा एथलेटिक्स वर्गीकरण, पैरा एथलेटिक्स वर्गीकरण यह निर्धारित करने के लिए एक प्रणाली है जिसमें दिव्यांगजन खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स की स्पर्धाओं में एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं। वर्गीकरण निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कराने के शारीरिक क्षमता के अनुसार एथलीटों का एक समूह बनाने की प्रक्रिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्रुप में डिवाइड करने को ही क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन करते कैसे? क्लासिफिकेशन के अंदर दो चीजें होती हैं। नंबर एक, मिनिमम डिसेबिलिटी क्राइटेरिया। इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी ने यह डिसाइड किया है कि मिनिमम डिसेबिलिटी के कितनी डिसेबिलिटी होगी कि आप पैरा स्पोर्ट्स में आओगे। ऐसा नहीं है कि आपको हल्का सा कम दिख रहा है, आपने हल्के से चश्मे लगाए तो आप पैरा स्पोर्ट्स में आ जाओगे, या मेरा एक उंगली कटी है तो उसके लिए एक मिनिमम डिसेबिलिटी क्राइटेरिया है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जब आप मिनिमम डिसेबिलिटी क्राइटेरिया को पार कर लेते हो, दूसरा क्राइटेरिया आता है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, कौन सी क्लास में आते हो। जो आईपीसी ने, जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ने एक सिस्टम बनाया, आप उसमें कौन से ग्रुप में आप फिट होते हो, तो फिर वो डिसाइड करते हैं। सेम एथलेटिक्स के अलावा जो दूसरे भी गेम खेले जाते हैं पैरा स्पोर्ट्स में, उनमें भी सेम क्लासिफिकेशन हर स्पोर्ट्स के अंदर होता है। अभी हम क्लासिफिकेशन को कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे एथलेटिक्स में ट्रैक एंड फील्ड दो कंपटीशन होते हैं, एक ट्रैक के अंदर होते हैं, एक फील्ड के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे ट्रैक को जो टी से संबोधित किया जाता है, थ्रो को एफ से, फील्ड इवेंट को एफ से संबोधित किया जाता है। तो नंबर 1 T11 से T13 तक ये विजुअली इम्पेयर्ड की कैटेगरी है। एक नंबर दिया गया हर एक ग्रुप को, तो 11 से 13 तक, 11, 12, 13, 3 नंबर ऐसे हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए होते हैं। जिसे T11 मतलब ट्रैक का, F11 मतलब फील्ड इवेंट का। सेम ऐसे ही दूसरी कैटेगरी है T20, इसमें इंटेलेक्चुअल वाले आते हैं। तीसरी कैटेगरी है 32 तो 38, इसमें सेरेब्रल पाल्सी वाले आते हैं। नंबर 4, 40 और 41 शॉर्ट स्ट्रक्चर वाले, ड्राफ्ट वाले आते हैं। नंबर 5, 42 से 44, इसमें लोअर लिम्ब की एम्प्यूटी और लोअर लिम्ब की डिसेबिलिटी वाले लोगों को इसमें रखा गया है। 45, 46, 47, 45, 46, 47, इसमें अपर लिम्स, हमारे हाथों की डिसेबिलिटी वाले लोगों को इस कैटेगरी में रखा गया है। 51 टू 54 और 51 टू 57 इस कैटेगरी में व्हील चेयर वाले स्पोर्ट्स वालों को रखा गया जो व्हील चेयर बाउंड होते हैं। 61 टू 64 इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो आर्टिफिशियल लिम्स यूज करते हैं, लोअर लिम्स में जिनके एम्पुटेशन होता है अबाउ द नी या बिलो द नी, और वो आर्टिफिशियल जिसे ब्लेड बोलते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। अब क्लासिफिकेशन सिस्टम है क्या, क्लासिफिकेशन स्टेटस क्या है क्या? सबसे पहले जब हम पहले क्लासिफिकेशन के लिए जाते हैं तो हमारा एक नेशनल क्लासिफिकेशन होता है जो हमारे नेशनल लेवल तक एलिजिबल होता है। फिर हमारा एक इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन होता है जो कि इंटरनेशनल बॉडी उसको अपने सिस्टम के अनुसार, अपने उनके क्लासिफायर होते हैं जो उसको क्लासिफिकेशन करते हैं। तो एक नेशनल क्लासिफिकेशन, देन एक इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन।
जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है, जो आपका फाइनल क्लासिफिकेशन है, वो इंटरनेशनल बॉडी ने अपने हाथ में रखा है। वो कोई भी एक इंडिविजुअल नेशनल फेडरेशन वो नहीं कर सकते। वो आईपीसी या इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी ही आपका क्लासिफिकेशन, जो इंटरनेशनल क्लासिफायर है, वो ही आपका क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन के अंदर 3 स्टेटस होते हैं आपके। नंबर 1 न्यू मतलब आप का कहीं क्लासिफिकेशन नहीं हुआ, आप डिसेबल हो, आप नए क्लासिफिकेशन के लिए जा रहे हो। नंबर 2 रिव्यू मींस आपको एक पीरियड के लिए उस क्लास में खेलने, उस ग्रुप में खेलने के लिए, उस कैटेगरी में खेलने के लिए दिया जाएगा, और आपको एक रिव्यू की डेट दी जाएगी जब डॉक्टर को लगेगा कि आप 1 साल के बाद आपकी कुछ डिसेबिलिटी में चेंजेस आ सकते हैं, तो आपको वो उसी डेट के अकॉर्डिंग आपको डेट देगा कि आप उस ईयर में रिव्यू कराएंगे। शायद आपकी डिसेबिलिटी कम या ज्यादा हो सकती है, तो उनको रिव्यू कैटेगरी में रखा जाता है। नंबर 3 कंफर्म कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनकी डिसेबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं आ सकते, तो क्लासीफायर उनको कंफर्म कैटेगरी में रखते हैं, जिसमें कि जैसे कि जिनके आई बॉल ही नहीं है, उनको कभी विजन नहीं आ सकता, या डॉक्टर को उनको चेक करते हैं, डॉक्टर को लगता है कि इनका विजन कभी नहीं आ सकता, या किसी का एम्पुटेशन है, किसी का हाथ कट चुका है, किसी का पैर कट चुका, उनको हाथ दोबारा नहीं लग सकता, नहीं आ सकता, तो ऐसे लोगों को कंफर्म क्लास में रखा जाता है। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया न्यू, रिव्यू और कंफर्म क्लास। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी ब्लाइंड कैटेगरी में विजुअली जो इम्पेयर्ड होते हैं उनमें 11, 12, 13 3 कैटेगरी होती हैं। तो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया जो आईपीसी के अकॉर्डिंग टू आईपीसी रूल T11 or F11, these athletes have a very low visual actually and or light perception, no light perception। तो इन्होंने एक क्राइटेरिया रखा है, ये हम लोगों की समझ में जितना आता है, बाकी जो विजुअली जो आंखों के डॉक्टर होते हैं उनके समझ में ज्यादा आता है। कुछ टेस्ट के बाद ही इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। 3 कैटेगरी हैं, 11, 12 और 13। 13 का सब क्राइटेरिया, ये तो हमने बेसिक क्राइटेरिया है, डिटेल्स में इसके आईपीसी की क्लासिफिकेशन बुक के अंदर इसका डिटेल्स में लिखा होता है। अब ये तो हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। जब हमारा एथलीट क्लासिफाई हो जाता है, फिर हमारा एथलेटिक्स में जो इवेंट होते हैं, जैसे मैंने बताया रनिंग, थ्रोइंग, जंपिंग इवेंट्स होते हैं, उसमें हमारे ब्लाइंड एथलीट्स के लिए नॉर्मल एथलीट से अलग क्या रूल्स होते हैं, बेसिक रूल्स मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कि 11 और 12 कैटेगरी। 11 कैटेगरी मतलब जिनको नहीं दिख सकता, जो खुद नहीं चल सकते या खुद रनिंग नहीं कर सकते, उनको गाइडर की जरूरत पड़ती है या एस्कॉर्ट की जरूरत पड़ती है, वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो उनके लिए गाइडर की एक सुविधा की गई है। 11 कैटेगरी के लिए गाइडर जो होता है वो कंपलसरी होता है। 12 कैटेगरी के लिए गाइडर ऑप्शनल होता है। 12 कैटेगरी वाला चाहे तो गाइडर ले सकता है, नहीं चाहे तो वो नहीं ले सकता है। और 5000 से लंबी दूरी, 5000 और 5000 से लंबी दूरी के लिए 2 गाइडर की व्यवस्था की गई है। 5000 रेस में हम 2 गाइड रनर यूज कर सकते हैं और 10,000 में यूज कर सकते हैं, यानी कि मैराथन में यूज कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि 11 और 12 कैटेगरी, अगर 11 कैटेगरी का एथलीट कंपीट कर रहा है तो उसको आई पैच और आई मास्क लगाना बहुत जरूरी होता है। आई पैच जब आप कंपटीशन करने के लिए जाते हो तो आपको आई पैच लगाने के बाद आपको आई मास्क लगाना पड़ता है। रनिंग इन द लेन, जो 11 और 12 कैटेगरी के लोग हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे एथलेटिक्स ट्रैक में 8 लेन होती है, तो 11 और 12 कैटेगरी के लिए एक एथलीट के लिए 2 लाइन ड्रॉ की जाती है। 2 लाइन ड्रॉ की जाती हैं। जैसे कि एक एथलीट के साथ गाइड रनर दौड़ता है तो 11 और 12 कैटेगरी के लिए एक साथ
4 लोग ही दौड़ सकते हैं। जैसे फर्स्ट और सेकंड लाइन में एक रनर होगा, थर्ड और फोर्थ लाइन में एक रनर होगा, 5 और 6 लाइन में एक होगा, 7 और 8 में एक रनर होगा। देन उसके बाद फिनिश 11 और 12 कैटेगरी के अंदर अगर कोई एथलीट गाइड रनर के साथ रनिंग कर रहा है तो उसको ये रूल है कि गाइड रनर से पहले एथलीट को फिनिश करना होता है। अगर गलती से या ड्रैगिंग और पुलिंग करते हुए गाइड रनर पहले फिनिश कर देता है तो उस एथलीट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। देन टीथर जिसके द्वारा गाइड रनर और रनर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उस रस्सी को हम टीथर बोलते हैं। उसका स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर से ज्यादा दोनों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। टीथर की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर होती है, 10 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए और उसकी स्ट्रेचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, उसमें वो खिंचाव नहीं होना चाहिए उसमें। और आजकल आईपीसी ने, इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी ने, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ने अपने टीथर बनाए हैं। हम ड्यूरिंग द कंपटीशन के दौरान हम वो ही टीथर यूज करते हैं, दूसरे टीथर अलाउड नहीं है। देन आता 13 कैटेगरी जिसमें कि हम लो विजन एथलीट आते हैं, उनके लिए सारे रूल्स एबल बॉडी के जैसे ही होते हैं। ये तो ट्रैक की बात हो गई। अब आते हैं जंप्स में जो लॉन्ग जंप हमारा इवेंट होता है उसके अंदर टेक ऑफ बोर्ड होता है। जो एबल बॉडी के लिए टेक ऑफ बोर्ड होता है उसकी 20 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है, लेकिन जो 11 और 12 कैटेगरी होती हैं उसके लिए 1 मीटर चौड़ाई होती है। उसमें वो एथलीट कहीं से भी उस 1 मीटर के अंदर से जंप कर सकता है। अगर उस 1 मीटर के आगे से करेगा तो उसको वो जंप फाउल माना जाता है। लैंडिंग एरिया 3.50 मीटर का वाइड होता है। मेजरमेंट, लॉन्ग जंप में जो मेजरमेंट है वो जहां से टेक ऑफ लेंगे और जो जहां पर लैंडिंग करेंगे उसी के बीच में आपको मेजरमेंट करना है। ऐसा नहीं है एबल की तरह आप कहीं से भी जंप करेंगे तो, लेकिन आपका मेजर एक ही जगह से होगा। लेकिन पैराब्लाइंड कैटेगरी में जहां से आप टेक ऑफ लेंगे वहीं से आपका जंप को मेजर किया जाएगा। असिस्टेंट, जैसा कि गाइडर हम ट्रैक में गाइडर यूज करते हैं, लेकिन जब हम फील्ड इवेंट में आते हैं तो हम असिस्टेंट यूज करते हैं, उसको असिस्टेंट बोलते हैं। अभी हम जंप्स के अंदर न्यू रूल के अकॉर्डिंग हम 2 असिस्टेंट यूज कर सकते हैं। एक असिस्टेंट से अगर कोई नहीं काम चलता है तो 2 असिस्टेंट भी ले सकते हैं, लेकिन आपको पहले ही कॉल रूम में बताना पड़ेगा। एक असिस्टेंट आपको टेक ऑफ की जगह, एक असिस्टेंट जहां से आप रनवे स्टार्ट कर रहे हैं जंप के लिए वहां पे आप रख सकते हैं। ये मैंने हमारे जो विजुअली इम्पेयर्ड एथलीट हैं उनकी जो एथलेटिक्स कंपटीशन में इम्प्लीमेंट यूज होते हैं उनमें कौन कौन से वेट होते हैं। जर्नली जो इम्प्लीमेंट एबल बॉडी में यूज होते हैं, जिस वेट के हमारे विजुअली इम्पेयर्ड के भी वो ही वेट के इम्प्लीमेंट यूज किए जाते हैं। ये लिस्ट है, इसमें जैसे कि शॉर्ट पुट है 7.26 kg का, डिस्कस 2 kg की और जेवलिन 800 ग्राम की। ऐसे ही ये लिस्ट है, उसी के अकॉर्डिंग जैसे एबल बॉडी में यूज होते हैं वही सेम इसमें यूज होते हैं। ये बेसिक मैंने आइडियाज बता दिया है कि पैरा स्पोर्ट्स है क्या, पैरा स्पोर्ट्स कैसे खेला जाता है, कौन लोग खेलते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे होता है। और क्लासिफिकेशन के बाद मैंने एथलेटिक्स में बेसिक रूल्स क्या क्या होते हैं। देन उसके बाद हम आते हैं मेन टॉपिक पे। इस लॉकडाउन के दौरान जबकि हम पिछले 3 महीने से घर के अंदर, 3.5 महीने से घर के अंदर बंद है, 3.5 मंथ से हम घर के अंदर लॉकडाउन में हैं, हम अपने आप को कैसे फिट रखें, मैं उसके बारे में आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात, जब आप अंदर हैं तो सबसे पहले अपना डेली का एक शेड्यूल बनाइए।
कि मुझे कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे ट्रेनिंग करना है। सबसे ज्यादा जरूरी इस लॉकडाउन में टाइम टेबल है अपना खाने पीने का। तो मैंने एक शेड्यूल आपको बनाया, मैं पढ़ के बता देता हूँ, और बाद में ये पीपीटी मैं समझता हूँ कि आप इंडियन ब्लाइंड स्पोर्ट्स के एसोसिएशन पे वेबसाइट पे जाके इसको देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। जैसा कि मेरे अकॉर्डिंग 5 AM सुबह 5 बजे आपको उठना है। 5 बजे से लेके 5:30 बजे के बीच में आपको फ्रेश होना है, ब्रश करना है, किटअप होना है फॉर मॉर्निंग ट्रेनिंग। 5 to 5:30 किटअप फॉर मॉर्निंग ट्रेनिंग। 5 बजे उठ के 5 से 5:30 के बीच में ट्रेनिंग के लिए तैयार होना है। फिर 5:30 से 7:30 बजे के बीच 5:30 to 7:30 मॉर्निंग ट्रेनिंग, 2 आवर्स, 2 घंटे आपको ट्रेनिंग करना है। जैसे ही मॉर्निंग ट्रेनिंग खत्म होगी 7:30, तो 7:30 आपको नींबू पानी आफ्टर मॉर्निंग ट्रेनिंग लेना है, नींबू गर्म पानी के साथ। ये स्पोर्ट्स वालों के लिए भी जरूरी है, और लॉकडाउन के टाइम में सभी डॉक्टर और हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री बोलती है कि नींबू पानी, विटामिन सी ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे और हम कोरोना वायरस से लड़ सकें। तो इसलिए इस लॉकडाउन के टाइम में गर्म पानी में नींबू लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपने 7:30 बजे नींबू पानी पी लिया, उसके बाद 7:30 to 8 AM, 7:30 to 8 AM, 7:30 से 8 बजे के बीच में आपको नहाना है, शावर एंड क्लॉथ वॉशिंग। 7:30 से 8 के बीच में आपको नहाना है और कपड़े धोने, आधा घंटे का ये अब काम होगा। 8 से 8:30 के बीच में ब्रेकफास्ट करना है। 8:30 बजे ब्रेकफास्ट करने के बाद 8:30 to 10 o'clock न्यूज देखना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, दुनिया में क्या चल रहा है वो सब करना है। 10:30 to 12 o'clock रेस्ट करना है, क्योंकि आप 5 बजे उठे हुए हैं, 10 बज चुके हैं, 5 घंटे आपको जगे हुए हो गए हैं। तो 2 घंटे का आपने 2 घंटे वर्कआउट भी किया है, इसलिए आपकी बॉडी को दिन में रेस्ट देना बहुत जरूरी है। इसलिए 10 से 12 बजे के बीच में आपको 2 घंटे रेस्ट करना है, सोना है या लेटना है, जो भी है। फिर 12 बजे जगने के बाद 12 से 1 के बीच में लंच करना है। 1 से 5 बजे के बीच में, जब 1 बजे लंच कर जाएंगे तो 1 से 5 के बीच में स्टडी, अपना काम करना है कोई भी। अगर आप स्टूडेंट है तो पढ़ाई करना है, अगर कहीं आप नौकरी करते हैं अपने ऑफिस का काम कर सकते हैं। 5 बजे से 5:30 के बीच में 5 to 5:30 फिर वो इवनिंग ट्रेनिंग के लिए किटअप करना है, अपना फ्रेश होना है, अपने जूते पहनने हैं, किट चेंज करना है। फिर 5:30 to 7:30 इवनिंग ट्रेनिंग के लिए अब हमने रखा हुआ है। 5:30 to 7:30 2 घंटे इवनिंग ट्रेनिंग। 7:30 फिर नींबू पानी गर्म पानी के साथ पीना है। फिर 7:30 to 8 PM शावर एंड क्लॉथ वॉशिंग। मॉर्निंग ट्रेनिंग, क्योंकि ह्यूमिड है, गर्मी के दिन है, पसीना आएगा, आप ट्रेनिंग करोगे तो शावर लेना बहुत जरूरी है, नहाना बहुत जरूरी है, नहाना है। फिर 8 to 9 8 से 9 के बीच में आप न्यूज देख सकते हैं, डिनर करना है आपको और खाना खाना है 1 घंटे के अंदर। 9 to 11 PM आपको स्टडी एंड वर्क करना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़िए, अगर आप कहीं वर्किंग है या अपनी कंपनी चलाते हैं, आपको कोई भी बिजनेस है तो अपना काम करिए। उसके बीच में 10 बजे आप गरम दूध पीना है, और 11 बजे रेस्ट एंड स्लीप, 11 बजे सो जाना है। तो 11 से 5 रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक आपको 6 घंटे रात को सोना है और 2 घंटे दिन में सोना है। तो 8 घंटे की स्लीप, 8 घंटे की स्लीप, 8 आवर्स की स्लीप स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत जरूरी है, जो आपको लेनी है। देन उसके बाद वर्कआउट, आपने डेली शेड्यूल बना लिया। फिर वर्कआउट कैसे करना है आपको, मैं आप 2 सेशन आपको डिस्क्राइब करता हूं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। जितना मैं बता सकता हूं, 2 सेशन आपको डिटेल करूंगा। जैसे मंडे मॉर्निंग है, जैसे मैंने मंडे मॉर्निंग और इवनिंग का वर्कआउट आपके लिए बताया है। वर्कआउट में आपके 3 जगह डिवाइड किया हुआ है हमने, 3 पार्ट्स में। नंबर 1 वार्म अप, नंबर 2 मेन ट्रेनिंग, नंबर 3 कूल डाउन।
तो 3 पार्ट हैं हमारे। वार्म अप में आपको क्या करना है, पहले वार्म अप करना है। जैसे ही हम सपोज करिए हम रात को 11 बजे सोए हैं और 5 बजे उठे हैं, हम 6 घंटे की स्लीप करके आ रहे हैं, तो हम सो के आ रहे हैं, तो हमारी मसल्स में ब्लड फ्लो स्लो होता है। तो हल्का सा पहले स्ट्रेचिंग करना है, मेन मसल का स्ट्रेचिंग करना है। नेक टू टो पूरा बॉडी का हल्का हल्का स्ट्रेच करना है। पहले नेक को स्ट्रेच करना है, जैसे मैंने इसमें लिखा वार्म अप में लाइट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। लाइट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के अंदर आपको नेक स्ट्रेच करना है, शोल्डर स्ट्रेच करना है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स स्ट्रेच करने हैं, ट्रंक स्ट्रेच करना है, फॉरवर्ड बेंड एंड बैकवर्ड बेंडिंग करना है। देन उसके बाद हेमस्ट्रिंग स्ट्रेच करना है, थाई के पीछे वाली मसल्स, फिर क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच करना है, फिर काफ मसल स्ट्रेच करना है। जब हल्का हल्का आप 10 मिनट अपनी बॉडी के हल्का हल्का लाइट स्ट्रेचिंग से, अगर आप विदाउट लाइट स्ट्रेचिंग के वो सीधे ही जॉगिंग या वॉकिंग पे, फास्ट वॉकिंग पे जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपकी मसल्स में ब्लड फ्लो होगा, इंजरी होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो इसलिए वार्म अप करने से पहले लाइट स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी है। आप लाइट स्ट्रेचिंग करिए, उसके बाद 20 मिनट्स फास्ट वॉक और स्लो जॉगिंग मैंने लिखा हुआ है। जैसे कि सपोज आपका घर है, घर कितना बड़ा है, आप वॉकिंग कर सकते हैं तो वॉकिंग करिए। अगर थोड़ा ज्यादा बड़ा है घर, तो पहले आपकी मोबिलिटी उसमें देख लीजिए, आपका सरफेस कैसा है, सारे सामान साइड में रखे हुए हैं, या फिर लॉकडाउन के दौरान आपके घर के आसपास कोई पार्क है, जैसे जिसमें कोई ज्यादा लोग आते जाते हो, कहीं टच नहीं करना है किसी चीज को, ऐसा पार्क देख लीजिए घर के आसपास। या घर के आसपास जो लोग गांव में रहने वाले हैं, गांव में इतना ज्यादा पैनिक नहीं है, गांव में इतने केसेस नहीं है कोरोना के, तो आप गांव में रहते हैं तो गांव में अपने खेत पे चले जाइए, वहां पे आपको ट्रेनिंग करना है। तो आप स्ट्रेचिंग करने के बाद 20 मिनट्स फास्ट वॉकिंग, अगर वॉकिंग की जगह है, जॉगिंग की जगह नहीं है, अगर जॉगिंग है तो सबसे बेस्ट है, फिर 20 मिनट जॉगिंग करना है। वार्म अप एक्सरसाइज करना है। वार्म अप एक्सरसाइज में जैसे कि हमने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज किया था पूरा बॉडी का, ऐसी वार्म अप एक्सरसाइज करना है। वार्म अप एक्सरसाइज में नेक टू टो पूरा बॉडी का वार्म अप एक्सरसाइज करना, नेक जॉइंट से लेके एंकल जॉइंट तक पूरे बॉडी की वार्म अप करना है। वार्म अप करने के बाद वार्म अप एक्सरसाइज में कभी भी जब हम जॉइंट को वार्म अप करते हैं, वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं, तो किसी भी जॉइंट को पहले हाफ रोटेट करते हैं, फिर फुल रोटेट करते हैं। सपोज कर दिया हमने गर्दन को रोटेट करना है, तो हमें नेक जॉइंट को रोटेट करना, तो पहले हाफ रोटेट करेंगे, फिर फुल रोटेट करेंगे। सेम ऐसी शोल्डर जॉइंट को पहले हाफ रोटेट करना है, फिर फुल रोटेट करना है। सेम ऐसी ट्रंक को पहले हाफ रोटेट करना है, फिर फुल रोटेट करना है। तो हम पूरी बॉडी का वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे। फिर हमारा जो मेन, जब हमारा वार्म अप हो गया, उसके बाद हम इंडोरेंस ट्रेनिंग पे, जैसे आज हमारा मेन टास्क है ट्रेनिंग का, इंडोरेंस ट्रेनिंग। मंडे मॉर्निंग का आप सपोज करिए आपको इंडोरेंस ट्रेनिंग करना है, तो इंडोरेंस ट्रेनिंग में लॉकडाउन के दौरान अगर आप घर में भी हैं, तो घर के अकॉर्डिंग मैंने एक वर्कआउट प्लान किया है आपके लिए, कैसे कर सकते हैं इंडोरेंस ट्रेनिंग करना है। जैसा कि मैं यहाँ थोड़ा सा आपको साइंटिफिक ट्रेनिंग के बारे में बताना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस है, वो हमारी मोटर क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करती है, जो हमारी शारीरिक कामक क्षमता के ऊपर ही डिपेंड करती हैं, जिसमें कि एंडोरेंस, स्ट्रेंथ, स्पीड, कोऑर्डिनेशन, एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब आते हैं। इसमें से भी मेन 3 एथलेटिक्स में 3 मेन यूज होती हैं, इंडोरेंस, स्ट्रेंथ और स्पीड। तो जहां मैंने इंडोरेंस ट्रेनिंग के बारे में बता रहा हूं कि आपको मंडे मॉर्निंग में अगर इंडोरेंस ट्रेनिंग करना है तो कैसे कर सकते हैं लॉकडाउन के दौरान। जब आप वार्म अप कर लिए हैं, तो वार्म अप कर चुके हैं, उसके बाद आपको इंडोरेंस ट्रेनिंग करना, आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास कुछ जगह है दौड़ने के लिए तो आप रनिंग कर सकते हैं, नहीं है अगर घर में भी हैं आप, आपके पास 4x4 मीटर का कोई रूम भी है, 10x10 का कोई रूम भी है, आप उसमें भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 20 मिनट ऑन द स्पॉट हाई नी रनिंग करना है। एक जगह खड़े हो जाइए, घुटना ऊपर, जैसे रनिंग करते हैं, एक जगह खड़े होकर रनिंग करिए 20 मिनट तक लगातार, ठीक है। उसके बाद आपको 3 मिनट फिर रेस्ट करिए, फिर 20 मिनट्स कोई चेयर ले लीजिए या बैठ जाइए या खड़े होके
खड़े होकर रनिंग स्टाइल में खड़े हो जाइए और दोनों हाथ में कोई भी वेट, कोई पत्थर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए हाथ में, 1 किलो से लेके 2 किलो तक का कोई भी वेट लेके हाथ में, और रनिंग एक्शन की तरह जैसे रनिंग करते हैं उसमें रनिंग 20 मिनट्स आप आर्म एक्शन कीजिए, आर्म रनिंग एक्शन करिए। देन आपका लोअर बॉडी का एक एक्सरसाइज हो गया, हाई नी, अपर बॉडी का एंडोरेंस हो गया, 20 मिनट्स आर्म एक्शन। देन उसके बाद 20 मिनट रनिंग बैक किकिंग, जैसे खड़े हो गया हाई नी किया था वैसे ही एक खड़े होके बैक किकिंग करना 20 मिनट्स। तो मैंने एक ये एग्जांपल दिया है इंडोरेंस ट्रेनिंग का, ये एक रनर के लिए है। इसी तरह से आप एक थ्रोवर्स या जंपर भी अपनी इंडोरेंस ट्रेनिंग कर सकता है। थ्रोवर कैसे इंडोरेंस ट्रेनिंग करना है, थ्रो को थ्रोइंग इंडोरेंस बनाना है, तो वो एक सेशन में 100 थ्रो कर सकता है, कुछ भी आप ले लीजिए उसको, उससे कोई भी किसी भी वेट का कोई भी आप मेडिसिन बॉल है तो मेडिसिन बॉल ले लीजिए, डंबल ले लीजिए, आपको थ्रोइंग एक्शन में 100 थ्रो एक्शन करने खड़े होके, तो वो आपका इंडोर थ्रोइंग इंडोरेंस हो गया। जैसे जंप्स है, आप खड़े होके जंप्स करिए एक सेशन में, जैसे आप सपोज करिए आपको 400 जंप्स करना है, खड़े हो जाइए एक रूम में, आप ऑन द स्पॉट 400 जंप करना है, 100 के मुझे 4 सेट करना है, तो आपका जंपिंग इंडोरेंस हो गया। तो ये इंडोरेंस ट्रेनिंग आपको ऐसे करना है। देन उसके बाद जब आपका मेन टास्क पूरा हो जाता है, देन कूल डाउन पे जाना है। 10 मिनट वही फास्ट वॉकिंग करना है, 10 मिनट स्लो जॉगिंग करिए, जैसे भी आपके पास फैसिलिटी है। उसके बाद स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करिए या योगासन कर सकते हैं। योगासन में सबसे ज्यादा अच्छी चीज है सूर्य नमस्कार, जिसमें कि 12 आसन एक साथ हो जाते हैं, पूरी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। तो कूल डाउन में आप 10 मिनट जॉगिंग वॉकिंग करने के बाद आप 10 मिनट के लिए या आधा घंटे आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। जब आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने के बाद आप प्राणायाम भी कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कूल डाउन में जो आपकी बॉडी को रिलैक्स करेगी और आपके एंडोरेंस लेवल को बढ़ाएगी। तो ये मॉर्निंग का मंडे एक सेशन, जैसे आपने मंडे मॉर्निंग का आपका सेशन पूरा हो गया, देन उसके बाद रिलैक्स करो, आपने पूरे दिन अपना जो डेली रूटीन बताया मैंने उसको फॉलो करो। डेली रूटीन के बाद जब इवनिंग ट्रेनिंग पे जाएंगे तो ये ध्यान रखना है कभी भी सिमिलर सेम चीज रिपीट नहीं करना। जैसे सुबह मॉर्निंग का हमारा टास्क था इंडोरेंस ट्रेनिंग, तो इवनिंग में हमें अपना टास्क चेंज कर देना है। हम जैसे मॉर्निंग में इंडोरेंस किया तो इवनिंग में हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे। सेम वार्म अप का वही प्रोसीजर है, कूल डाउन का सेम वही प्रोसीजर है। वार्म अप में वही लाइट स्ट्रेचिंग करना है, लाइट स्ट्रेचिंग नेक टू टो पूरा लाइट स्ट्रेचिंग करो पूरे मेन मसल्स का। उसके बाद 20 मिनट्स वॉकिंग या स्लो जॉगिंग करना है, फिर वार्म अप एक्सरसाइज करना है। जब हमारा वार्म अप हो जाएगा, ये हाफ एन आवर या 35 मिनट्स या 30 टू 40 मिनट्स का वार्म अप हो गया। 40 मिनट्स वार्म अप के बाद आपको 1 आवर कम से कम मेन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है। जैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में मैंने ओन बॉडी स्ट्रेंथ, आपके पास कुछ भी नहीं है, मैंने बताया जैसे कि जैसा आपके पास फैसिलिटी है उसके अकॉर्डिंग हम अपने वर्कआउट को मॉडिफाई कर सकते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए हम हमारे पास अगर कुछ भी नहीं है तो हम ओन बॉडी स्ट्रेंथ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। हम कहीं बाहर नहीं जा सकते, जिम की कोई प्लेट यूज नहीं, वेट ट्रेनिंग यूज नहीं कर सकते, कुछ नहीं यूज कर सकते। उसके बावजूद भी हमारे पास घर में एक रूम तो होगा, हम उस रूम के अंदर भी अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में हम जैसे पुशअप्स, अपर बॉडी के लिए हम बाइसेप्स ट्राइसेप्स के लिए पुशअप्स करेंगे, पुशअप्स के 4 सेट लगाएंगे। पुशअप्स लगाने के बाद फिर हम सिटअप्स करेंगे जो अब्डोमिनल एक्सरसाइज के लिए, कोर की स्ट्रेंथ के लिए है। देन उसके बाद ट्राइसेप्स एक्सरसाइज करेंगे। ये ध्यान रखना है जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे तो मसल्स ग्रुप चेंज कर करके आपको एक्सरसाइज करना है। अपर बॉडी का जैसे बाइसेप ट्राइसेप्स किया, देन उसके बाद बाइसेप्स ट्राइसेप्स किया, उसके बाद आपने कोर मसल्स किया, देन लोअर पार्ट किया, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स एंड देन काफ मसल्स। जब आपका 40 मिनट्स वार्म अप हो गया, 40 मिनट्स वार्म अप के बाद आपको 1 आवर कम से कम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है। देन उसके बाद आपको कूल डाउन पे जाना है। कूल डाउन में सेम वही 10 मिनट वॉकिंग या जॉगिंग जो कर सकते हैं, देन उसके बाद वही स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, योगासना एंड प्राणायाम कर सकते हैं।
तो ये मैंने 2 सेशन आपको डिस्क्राइब किए हैं, इसी तरह से अपना आप ट्रेनिंग प्लान बना सकते हैं। यहाँ टाइम कम है तो मैं इतने डिटेल में बता नहीं सकता, मैंने एक कॉमन ये आइडियाज आपको बता दिए हैं। अगर आप थ्रोअर हैं तो अपने वर्कआउट को वैसे मॉडिफाई कर लें, अगर आप रनर्स हैं तो वैसे मॉडिफाई कर लें, अगर आप स्प्रिंटर हैं तो स्प्रिंट की तरह आप मॉडिफाई कर लें। जैसे कि हमने पहला सेशन मैंने बताया इंडोरेंस, सेकंड सेशन आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तो थर्ड सेशन अगर ट्यूसडे मॉर्निंग जाते तो हम स्पीड ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो हमारे 3 रूटीन में आगे देन फिर इंडोरेंस पे जा सकते हैं। तो ध्यान रखना है, एक एक ट्रेनिंग टास्क को रिपीट नहीं करना है। इवनिंग में तो अपने हिसाब से, अपने इवेंट के अकॉर्डिंग, अपने स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग आप ट्रेनिंग प्लान कर सकते हैं। तो ये बेसिक आइडिया है ट्रेनिंग प्लान का। देन उसके बाद मैंने आपको पूरा अपना डेली का शेड्यूल बता दिया कि आपका डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए, जो लॉकडाउन के दौरान बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर लॉकडाउन के दौरान आप कैसे ट्रेनिंग करेंगे, कैसे आप 2 सेशन मैंने उसके भी बता दिए हैं, वो ट्रेनिंग कैसे करेंगे। देन हम थर्ड चीज पाते हैं हम, डाइट प्लान। तो 3 चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, आपका डेली शेड्यूल, ट्रेनिंग शेड्यूल, देन तीसरा डाइट प्लान। तो डाइट प्लान के बारे में एक कॉमन आइडियाज में, जो सभी एथलीट के लिए, वैसे तो स्पेसिफिक जब आप इंटरनेशनल लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे अपने इवेंट की तैयारी करेंगे तो उसके लिए अकॉर्डिंग टू इवेंट डाइट प्लान होगा, ट्रेनिंग प्लान होगा, अकॉर्डिंग टू उसी के हिसाब से डेली प्लान होगा आपका। लेकिन ये मैं जो बता रहा हूँ वो एक कॉमन स्पोर्ट्समैन, जो बिगिनर स्पोर्ट्समैन है, जो नेशनल लेवल खेलते हैं, वो सभी के लिए लागू होता है। ये बेसिक चीजें हैं जो सभी यूज कर सकते हैं, मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप ना, जैसा कि सुबह मैंने बताया था कि ट्रेनिंग के बाद आपको 7:30 गर्म पानी में नींबू डाल के पीना है। गर्म पानी में नींबू डाल के पिए। 2 मिनट ब्रेक, मैं 2 मिनट के बाद आता हूँ। मेरा गला भी थोड़ा थोड़ी सा पानी ले लीजिए। यस, हाँ, वेलकम बैक। तो 7:30 जैसे ही मॉर्निंग ट्रेनिंग आपकी खत्म होती है 7:30, तो 7:30 जैसे मैंने बताया कि गर्म पानी पीना है। तो 500 ml में आधा लीटर पानी में गर्म करके हल्का गुनगुना करके एक नींबू डाल के वो पिएंगे तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। देन उसके बाद 8 to 8:30 आपको ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट में जनरली हमें क्या खाना है, ब्रेकफास्ट में हमें नंबर 1 फ्रूट, 2 बनाना ले सकते हैं, ऑब्लिक 1 मैंगो, 1 एप्पल, एनी सीजनल फ्रूट कोई भी एक एक कोई भी एक फ्रूट लेना है, कोई भी एक फ्रूट लेना है। और देन उसके बाद सेकंड में ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में 100 ग्राम ड्राई फ्रूट्स जरूर लेने हैं, जिसमें कि बादाम हो गए, अखरोट हो गए, है ना, ये सब चीज, आपको काजू, ये 100 ग्राम्स ये लेने हैं। मिल्क आधा किलो दूध, आधा लीटर दूध लेना है। ओट्स, दलिया और कॉर्नफ्लेक्स ये आप ले सकते हैं। ओट्स ऑब्लिक दलिया ऑब्लिक कॉर्नफ्लेक्स, ये अकॉर्डिंग टू अपने टेस्ट, अकॉर्डिंग टू अपने वर्कआउट, अकॉर्डिंग टू अपने इवेंट्स ये चेंज कर सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट में फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स, मिल्क, ओट्स, दलिया ये ले सकते हैं। 12 अभी ब्रेकफास्ट हो गया, उसके बाद लंच, उसके बाद लंच 12 से 1 के बीच में लंच करना है। लंच में आपको दाल, राइस, ग्रीन सलाद और कर्ड, 4 चीजें लंच में आपको यूज करनी है।
यस, लंच में दाल, क्योंकि दाल में हाई प्रोटीन होता है, राइस जो जल्दी से आप डाइजेस्ट कर सकते हैं, ग्रीन सलाद क्योंकि आपको इवनिंग ट्रेनिंग भी करना है, ग्रीन सलाद में आप खीरा और कर्ड ये लेना है। देन फिर वही शाम को ट्रेनिंग के बाद 7:30 नींबू पानी पीना है, सेम। फिर 8 डिनर में आपको दाल, राजमा, चने, इसकी सब्जी या ग्रीन सब्जी, वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल। देन प्रोटीन के लिए आपको जो नॉन वेज खाते हैं वो नॉन वेज, जो वेजिटेरियन है उनके लिए पनीर, रोटी और सलाद ये। और देन उसके बाद 10 बजे सोने से पहले आप आधा किलो या आधा लीटर 500 ml हॉट मिल्क ले सकते हैं। देन उसके बाद आता है कोचिंग। ब्लाइंड पैरा एथलीट के लिए कोचिंग करने के लिए क्या चीज जरूरी है? ब्लाइंड पैरा एथलीट्स के लिए और इस लॉकडाउन के टाइम में सबसे पहले मोटिवेशन, अपने आप को मोटिवेट करके रखना है। कोई भी मोटिवेशन वाली वीडियोस देखें, कोई भी मोटिवेशन वाली स्पीच सुने। जी हाँ, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, एक स्टोरी आपको छोटी सी सुनाना चाहता हूँ। 1936 में एक एथलीट थे हंगरी के, वो आर्मी में थे। उन्होंने, वो अच्छे शूटर थे, वो आर्मी में शूटिंग करते थे और पिस्टल शूटर थे। उन्होंने बहुत अच्छा ट्रेनिंग किया, ट्रेनिंग करके वो नेशनल चैंपियनशिप जीतने लगे, जितने भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट थे शूटिंग के वो जीतने लगे। उनका आने वाले ओलंपिक में जो 38 से उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट किया और 40 ओलंपिक में उनको पक्का हो गया, श्योर हो गया कि 40 ओलंपिक में वो गोल्ड मेडल जीत जाएंगे। 40 ओलंपिक ड्यू टू वर्ल्ड वार कैंसिल हो गए, तो उन्होंने 4 साल जितनी मेहनत की थी वो सब चली गई। उसके बाद वो वर्ल्ड वार में लड़ाई में चले गए। वर्ल्ड वार में उनका, वो राइट हैंड शूटर थे, वर्ल्ड वार में राइट हैंड से वो उनके बॉम्ब ब्लास्ट हो गया और राइट हैंड ही उनका कट गया। तो उन्होंने सोचा कि अब तो लाइफ खराब होगी, अब तो शूटिंग भी चली गई, सब कुछ हो गया। लेकिन उन्होंने सोचा नहीं यार, ये जिंदगी नहीं है। अपने आप को मोटिवेट किया और अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड किया और स्टार्ट किया, और उस हाथ से शूटिंग करना स्टार्ट किया जिस हाथ से वो खाना ठीक से नहीं खा पाते थे, तो निशाना क्या लगाएंगे। फिर उन्होंने उस हाथ से शूटिंग स्टार्ट किया और करते करते 4 साल फिर कड़ी मेहनत की। 4 साल कड़ी मेहनत करने के बाद उनके लेफ्ट हैंड में भी वो एक्यूरेसी आ गई, क्योंकि सारा काम उनको लेफ्ट हैंड से ही करना होता था। धीरे धीरे वो लेफ्ट हैंड से भी अच्छा निशाना लगाने लगे। 4 साल ट्रेनिंग के बाद जब वो तैयार हुए तो पता चला कि 44 ओलंपिक भी ड्यू टू वर्ल्ड वार कैंसिल हो गया। मतलब 36 से उन्होंने स्टार्ट किया, 44 तक 8 साल तक अच्छी मेहनत की, अच्छी ट्रेनिंग की, लेकिन दोनों वर्ल्ड वार के कारण दोनों ओलंपिक नहीं हो पाए। और उनका बड़ा नाम था शूटिंग के फील्ड में, वो बहुत अच्छे शूटर थे, वर्ल्ड नंबर 1 थे। उसके बाद बिल्कुल पूरी तरह टूट गए, क्योंकि एज भी हो चुकी थी, एक हाथ भी नहीं था। लेकिन फिर भी उसके बाद उन्होंने छोड़ा नहीं, अपने आप को मोटिवेट किया, अपने आप को बूस्टअप किया और ट्रेनिंग को अपने कंटिन्यू रखा। और कंटिन्यू करते करते वो ट्रेनिंग करते रहे और अपनी फिटनेस बनाए रखे। करते करते 1948 ओलंपिक आ गए, और ओलंपिक से पहले उन्होंने किसी भी मेजर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। एक टूर्नामेंट में पहले ऐसा क्वालिफिकेशन सिस्टम नहीं होता था, जिस भी कंट्री जो एंट्री भेज देती थी वो पार्टिसिपेट कर लेते थे। तो उनकी कंट्री ने उनकी एंट्री भेज दी, वो चले गए। जब वो शूटिंग रेंज में पहुंचे 1948 में, तो सब शूटरों ने उनका ताली बजा के स्वागत किया। किस लिए स्वागत किया? स्वागत इसलिए किया कि आपका एक हाथ कट गया और उसके बाद भी आप हमारे इवेंट देखने आए हो। स्पीच दिया लोगों ने कि आप हमारे इवेंट देखने आए हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। तो उनको स्पीच देने के लिए
स्टेज पे बुलाएगा तो उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ आपका इवेंट देखने नहीं, आपके साथ compete करना आया हूँ। और उन्होंने 1948 ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया और गोल्ड मेडल जीता। तो इस कहानी के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये तो 3-4 महीने, साल 2 साल का है। जो बंदा 12 साल इंतजार करके फिर ओलंपिक जैसे कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीत सकता है, तो आदमी कुछ भी कर सकता है। आप हिंदुस्तान में देख लीजिए, देवेंद्र झाझड़िया 2004 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था और 2016 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। 12 साल अपने आप को वर्ल्ड लेवल पे फिटनेस रखना कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है और अपने आप में नंबर 2 कॉन्फिडेंस की बहुत जरूरत है। अपने आप में विश्वास रखिए, अपने आप के कॉन्फिडेंस को लूज मत होने दीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ आप ट्रेनिंग करें, अपनी मोबिलिटी को अच्छा रखिए। ऐसा नहीं आप घर में बंद हो गए तो चलना फिरना बंद कर दिया, बिल्कुल अपनी मोबिलिटी को बरकरार रखिए, अपने आप की जो डेली के दिनचर्या है उसको बनाए रखिए, कोऑर्डिनेशन बनाए रखिए, लोगों से मिलते रहिए, लोगों से फोन पे बात करते रहिए, कोऑर्डिनेशन बना के रखो, हैंड हैंड लेग का कोऑर्डिनेशन बना के रखो, आपस में एक दूसरे से बात करते रहो, लर्निंग अपने अच्छी रखो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अपनी सीखना ही नई नई चीजें सीखते रहो, नई नई जैसे वीडियो आजकल जमाना है सोशल मीडिया का या इंटरनेट का, जूम पे अच्छे अच्छे वेबिनार हो रहे हैं, ये सीखिए से करिए, पेशेंस रखिए, पैनिक मत होइए, आप इंतजार कीजिए, सब कुछ नॉर्मल होगा, ठीक होगा, अच्छा होगा, पॉजिटिविटी रखिए, इंतजार करिए, एजुकेशन अपनी एजुकेशन को बढ़ाइए। इस टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में, गोल्डन टाइम में अपने घर में रहिए, अपने पढ़ाई करिए, अच्छे से अच्छी एजुकेशन करिए, अपने सिक्स सेंस को जागृत करिए, आप अपनी सोच के अनुसार अपने सिक्स सेंस को जागृत करिए, हाइजीन, साफ सफाई रखिए, लोगों से मिले तो डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सेफ्टी रखिए, सैनिटाइजर यूज करिए, बार बार हाथ धोइए, ये सब चीजें लॉकडाउन के टाइम में आपको सपोर्ट करेंगी। देन जब मैं आपको थोड़ा सा, जो पैरा स्पोर्ट्स के बारे में नहीं जानते हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ। अब पैरा स्पोर्ट्स का मैंने बता दिया आपको कि पैरा स्पोर्ट्स होता किन के लिए, डिसेबलों के लिए होता है, उसमें कैटेगरीज होती हैं, पैरा एथलेटिक्स होता है, एथलेटिक्स में कौन कौन से इवेंट होते हैं, ब्लाइंड्स के लिए कौन कौन सी कैटेगरी होती है, ट्रेनिंग कैसे करना है, अपने डेली शेड्यूल कैसे बनाना है, आपको डाइट प्लान कैसा चाहिए, अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं। देन उसके बाद आपको कौन कौन से कंपटीशन होते हैं पैरा स्पोर्ट्स में, मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ सिस्टमेटिकली क्या है, सिस्टम क्या है। सबसे पहले जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो स्टेट, सबसे छोटा जो कंपटीशन होता है वो स्टेट चैंपियनशिप होता है। हर स्टेट में एक पैरा स्टेट चैंपियनशिप होती है, पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप, स्टेट पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप। देन जैसा कि सभी लोग जो ब्लाइंड स्पोर्ट्स से जुड़े हों सभी को पता होगी, हमारी इंडियन ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन जो बहुत ही अच्छा काम कर रही है, जो सबसे पुरानी एसोसिएशन है हिंदुस्तान के अंदर, जो भी की डिसेबलों के स्पोर्ट्स के लिए काम कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है, वो नेशनल चैंपियनशिप कराती है, जिन्होंने 21 नेशनल चैंपियनशिप करा चुके हैं और सक्सेसफुली करा सकते हैं, बेस्ट फैसिलिटी के साथ और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल रूल्स के अकॉर्डिंग वो नेशनल चैंपियनशिप कराते हैं। देन उसके बाद नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप होती है जो पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया कराती है, जिसकी अभी तक 18 नेशनल चैंपियनशिप हो चुकी हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जब आप नेशनल में भी जीत जाते हैं तब आप इंटरनेशनल के लिए जाते हैं, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन के लिए जाते हैं। तो इंटरनेशनल जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स है, जो आईपीसी है, वो 8 to 9 ग्रांड पिक्स कराते हैं एक साल में। इप्सा वर्ल्ड चैंपियनशिप, इप्सा वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड गेम्स, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड गेम्स होते हैं जो 90 हमारी इंडियन ब्लाइंड टीम भी उसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जिसमें अभी तक हम 5 मेडल जीत चुके हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में। कॉमनवेल्थ गेम में भी पैरा स्पोर्ट्स होते हैं, जिसमें अभी तक इंडिया ने 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। एशियन पैरा गेम्स होते हैं, एशियन पैरा गेम्स में
3 एशियन पैरा गेम हो चुके हैं, उससे पहले बेसिक गेम होते थे। इंडिया के अभी तक तीनों भी एशियन पैरा गेम्स में पार्टिसिपेट किया है। वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो 1994 से स्टार्ट हुई थी, जिसमें अभी तक हम 18 मेडल जीत चुके हैं। और फिर जो टॉप लेवल गेम होते हैं वो जिसमें कि पैरा ओलंपिक्स गेम में अभी तक हम 12 मेडल जीत चुके हैं। तो ये नेशनल चैंपियनशिप और इंटरनेशनल चैंपियनशिप है। इसी के बीच में जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैसे आप लॉकडाउन के दौरान अपने आप को फिट रखेंगे, अपना शेड्यूल कैसे फॉलो करना है, अपना डाइट शेड्यूल कैसे फॉलो करना है, ट्रेनिंग कैसे करना है। ये तो देखो, मैं तो एबल कोच हूँ, मुझे सब कुछ दिखता है, लेकिन एक पैरा एथलीट, एक वर्ल्ड क्लास एथलीट जो अंकुर धामा है, हमारे हिंदुस्तान का टोटली ब्लाइंड पैरा एथलीट है, जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है, वो आपको इस दौरान 3 महीने से अपने घर में है, वो अपने आप को कैसे फिट रखे हुए हैं और कैसे ट्रेनिंग कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि अंकुर धामा खुद अपने आप बताएं कि कैसे हमारे पैरा एथलीटों को, हमारे ब्लाइंड पैरा एथलीटों को वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें। Good evening, IBSA senior members और dear friends। जैसा कि अभी यहाँ पर हम लॉकडाउन के दौरान मिले हैं और सर लॉकडाउन में किस तरह से ट्रेनिंग करा रहे हैं वो आपको बता चुके हैं कि इस समय एक ये महामारी का टाइम है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करना है और बीइंग ए विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे मेंटेन करें। और आजकल वैसे भी जो ये हमारा वायरस है बहुत स्पीडली आगे बढ़ रहा है, स्प्रेड हो रहा है। तो ऐसे में अगर मैं आपके साथ अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं अभी लास्ट 3.5 मंथ्स के अराउंड से यहाँ पर अपने ये होम में हूँ, तो किस तरह से मैं अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। देखिए, सबसे एक बहुत ही अहम जो बात है, एक एबल्ड बॉडी एथलीट और एक डिसेबल, उसमें भी विजुअल इम्पेयरमेंट में जो एथलीट हैं, जो 100% विजुअल इम्पेयरमेंट में हैं, उनके साथ प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या वर्कआउट कर सकते हैं। सबसे पहले आपका जो सोचने का तरीका या आपके वर्कआउट को प्लान करने के लिए सबसे पहले आपको सोचना होगा कि आप अपनी सेफ्टी किस तरह से मेंटेन करते हैं। आपका जो सराउंडिंग्स है, इन्वायरमेंट है, वो क्या 100% सेफ है आपकी एक्टिविटीज़ के लिए। अगर आप होम में हैं तो आप किसी रूम में अगर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ये उस रूम को अपने माइंड मैप में उतारिए और फिर उसके बाद वहाँ पर आप अपनी ट्रेनिंग जो आपको कोचेस ने डिस्क्राइब की है, या फिर अगर आप अकेले हैं तो किस तरह से आपको अपनी ट्रेनिंग करनी है उसमें। जैसा कि अभी आपको हेल्प के लिए सर ने बताया कि कई 6 टाइप्स ऑफ वेरिएशन है ट्रेनिंग के, इंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस, इन सब पर आपको एक एक सेशन काम करना है। तो वो ऐसे में देखिए, सबसे पहले आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप एक विजुअल इम्पेयर्ड एथलीट हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आपके कोई ना कोई आपके घर का मेंबर आपके साथ हो, जिससे अगर आप कुछ टाइमिंग के साथ वर्कआउट करना चाहते हैं वो भी आपको बता सकें, प्लस आपके अगर टेक्निक्स जो आप पहले ग्राउंड पे कर रहे थे और कोच की ऑब्जर्वेशन में कर रहे थे वो खराब ना हो, ऐसे इसके लिए आप अपने साथ एक एबल पर्सन रख सकते हैं जो आपको गाइड कर सके कि आपके मूवमेंट बहुत हद तक ठीक हैं। तो इससे आपका जो एनर्जी है वो सही दिशा में, सही डायरेक्शन में जाएगी और आपका इम्प्रूवमेंट आएगा। जैसे अभी मैं अगर खुद से बताऊं, मैं 3 महीने से ज़्यादा यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा हूँ। उसमें मैं अपना वर्कआउट बेसिकली जो ऑन स्पॉट
जॉगिंग है ऑन द स्पॉट, वॉकिंग करता हूँ रूम के अंदर, और कोशिश करता हूँ कि जब भी आप हमारे आसपास ये फैसिलिटी होती है कि हमारे पास कोई ग्राउंड है, वहाँ पर जो लोगों का आवागमन है बहुत कम है, तो ऐसे में मैं किसी की हेल्प के, अपने जो फ्रेंड्स हैं या मेरे नेफ्यूज हैं उनकी मदद से वहाँ पर ट्रेनिंग करता हूँ। इसमें जो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ओन बॉडी एक्सरसाइज कर सकते हैं, और ऐसे में आप ध्यान ये रखिए कि ओन बॉडी एक्सरसाइजेस को अगर आपको फिट और मेंटेन रखना है तो जितना आप ग्राउंड पे कर रहे थे उसका थोड़ा सा टाइमिंग्स और ड्यूरेशन आप बढ़ा दीजिए, रेपिटेशन आप बढ़ा दीजिए। जैसे सर ने अभी आपको इंड्योरेंस ट्रेनिंग का तो एग्जांपल दिया ही है, आप 20 मिनट्स रनिंग ऑन द स्पॉट्स कर सकते हैं। ऐसे ही सर ने आपको स्ट्रेंथ का बताया। स्पीड के लिए भी आप बेसिकली, अगर आपके पास जगह कम है तो फिर भी आप हाई नी को काउंटिंग्स में 100 हाई नीज करके रेस्ट ले सकते हैं, फिर 100, इस तरह से आप रेपिटेशंस कर सकते हैं। बैक किकिंग इसी में कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी बढ़ा सकते हैं, एक बैलेंसिंग बढ़ाएंगे जिससे आपका स्पीड में डेफिनेटली फायदा होगा। इन दिनों आप सबसे ज्यादा फोकस योगा पर थोड़ा ज्यादा कीजिए, क्योंकि ये एक आसान है और ये हमारे लंग्स कैपेसिटी को भी इंक्रीज करता है और इम्यूनिटी में भी काफी फायदा पहुंचता है। तो इन सब चीजों पर आप ज्यादा फोकस बना सकते हैं। साथ साथ कोर में भी आप कोर पर काफी काम कर सकते हैं, क्योंकि कोर एक ऐसा हमारा जो बिंदु है जिससे हमारी कोऑर्डिनेशन और बैलेंसिंग बढ़ती है। आप कोर को भी होल्ड कर टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। कोर एक्सरसाइजेज जैसे आप प्लैंक्स कीजिए वेरिएशन के साथ, आप एल्बो के साथ प्लैंक कीजिए, साइड प्लैंक्स कीजिए, बैक प्लैंक्स कीजिए, और आप अपने बेसिकली कोर को जितना आप ज्यादा स्टेबल रखेंगे उतना ही आपकी स्ट्रेंथ में फायदा होगा, और साथ ही साथ इंटरनल पावर भी इंक्रीज होगी। आप इस चीज पर थोड़ा ज्यादा फोकस कर सकते हैं, और साथ ही साथ फोकस रहने के लिए अभी काफी ऐप्स भी हैं जिनके मदद से आप, जिसमें आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ साथ ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा, आप उनकी मदद ले सकते हैं और आप नई नई एक्सरसाइजेज यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। तो हमारे पास आजकल टेक्निक और टेक्नोलॉजी की मदद से आप और हम सब इस महामारी से पार पा सकते हैं और अपने आप को हेल्दी और फिट रख सकते हैं। तो मैं आपको बस यही बताना चाहूँगा कि इस समय सर ने आपको मोटिवेशन भी बता दिया, आपका कॉन्फिडेंस, लेकिन इन सब के साथ साथ आप में एक जिजीविषा कह दीजिए या विल पावर, इच्छा शक्ति, आपको बार बार अपनी उस इच्छा को जगाना होगा, क्योंकि एक इंसान है और फोकस कई बार लूज होता है, तो उस फोकस को बार बार फोकस अपना दोबारा से बनाते हुए, चीजों पर कंसंट्रेट करते हुए, अब इस चीज को ध्यान रखना होगा कि हमारा नेक्स्ट टारगेट, आप अपने टारगेट के बारे में सोचिए, और टारगेट से पहले बस आप टाइम पीरियड को थोड़ा सा डिफाइन कीजिए कि आप किस टाइम पीरियड में हैं और आप इस समय अपने बॉडी को कितना और कहाँ तक फिट रख सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है इस महामारी में। और साथ ही साथ आप खान पान, डाइट सर बता चुके हैं इस समय, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमारे यहाँ पर अभी जैसे मौसमी परिवर्तन भी है, तो मैं इस पर भी आपको विशेष ध्यान देने के लिए कहूँगा, क्योंकि मौसम बदल रहा है, तो ऐसे में आपका स्वास्थ्य डगमगा सकता है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर मानसून आ चुका है, और फिर साथ ही साथ ऐसे में बैक्टीरियाज का जो खतरा है वो और बढ़ जाता है। तो आप साफ सफाई पर थोड़ा सा और
ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं बस आपको यही बताना चाहूँगा अपनी तरफ से कि आप ज़्यादा फोकस्ड रहकर, साथ ही साथ आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जब वर्कआउट करें तो आप काउंटिंग में करें, जिससे आप फोकस्ड भी रहेंगे और आपको प्रोग्रेशन पता भी चलेगा। क्योंकि कई बार टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग मुश्किल होगा इन दिनों, क्योंकि स्टॉप वॉच भी नहीं होती है, आपके पास कोई मेंबर भी नहीं होंगे। तो ऐसे में आप रेपिटेशंस करें, तो आप उनकी काउंटिंग करें, जिससे आपका फोकस भी बढ़ेगा और साथ ही साथ आपको ये पता रहेगा कि आपने लास्ट डे क्या एक्टिविटी की थी और अब आप कितनी एक्टिविटी कर सकते हैं। क्योंकि स्पोर्ट्स अगर आप परफॉर्मेंस के लिए कर रहे हैं तो आपको अपनी ट्रेनिंग को इंक्रीज करते रहना पड़ेगा, तभी आप वर्ल्ड लेवल, नेशनल लेवल, इन सभी कॉम्पिटिशन्स में आप पार पा पाएंगे और अच्छे से देश और इंडियन ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन, परिवारजन, सभी का सहयोग जो आपको और हम सबको मिलता है, उसका पारितोषिक हम खुद ले पाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि पुनः सर और आप आगे कुछ बताना चाहें। Thank you so much, Dr. Satyapal, थैंक यू। for sharing para sports technicals and the techniques which can be done by the blind athletes in their home. And also, of course, my young friend Ankur, बहुत अच्छी बातें शेयर की। जी अभी मेरा खत्म नहीं हुआ, अभी 10 मिनट। हाँ नहीं सर, एक्चुअली मैं वही बता रहा हूँ कि हमारे पास एक क्वेश्चन है। अच्छा सर, अभी आपको बच रहा है कुछ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ प्लीज सर। हाँ बताइए रामदास जी। अभी मैं नेक्स्ट करता हूँ। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन कौन से कंपटीशन इसमें पैरा स्पोर्ट्स में होते हैं, ओलंपिक में तक बता चुका हूँ। देन उसके बाद उसके बाद आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान ने इंटरनेशनल लेवल पे पैरा स्पोर्ट्स में क्या क्या अचीव किया है, जिससे कि आपको देख के पता चलेगा, आप अपने आप को खुद मोटिवेट कर पाएंगे, अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे कि हम किस स्पोर्ट से जुड़े हुए और कैसे जुड़े हुए। इंडिया ने अभी इन ओलंपिक्स में एथलेटिक्स में, पैरा एथलेटिक्स में 10 मेडल जीते हैं, 3 गोल्ड, 4 सिल्वर, 3 ब्राउन्स। लेकिन ये एक छोटी सी दुख की बात यह है कि हमारे किसी भी विजुअली इम्पेयर्ड एथलीट ने यहाँ पर मेडल नहीं जीता है। मेरा और हमारी इंडियन ब्लाइंड एसोसिएशन का नेक्स्ट टारगेट यही होगा कि हम ओलंपिक में एक मेडल जरूर जीत के लाएं अपने विजुअली इम्पेयर्ड एथलीट के लिए। दूसरा सेम वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी हमने 18 मेडल जीते हैं। यहाँ पे भी किसी ब्लाइंड एथलीट ने अभी तक, विजुअली इम्पेयर्ड एथलीट ने मेडल नहीं जीता है। मेरी यही कोशिश है कि हम वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी मेडल जीत के लाए, और इप्सा वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड गेम्स, जिसमें कि हम 5 मेडल जीत चुके हैं, 1 सिल्वर और 4 ब्राउन्स। हम कोशिश करेंगे कि इससे भी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन वहां करें। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, जूनियर जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स कराती है, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, वहां पे 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई हैं जो स्विट्जरलैंड में हुई हैं। स्विट्जरलैंड में 2017 में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, उसमें किसी भी हमारे इंडिया ने उसमें 5 मेडल जीते थे। इंडियन किसी भी विजुअली इम्पेयर्ड एथलीट ने मेडल नहीं जीता था। नेक्स्ट जो 2019 में हमारी अभी लास्ट ईयर जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है, उसमें हमारे काफी सारे ब्लाइंड पैरा एथलीट्सों ने पार्टिसिपेट किया और 8 मेडल जीते हैं। इससे ये पता चलता है कि हमारे विजुअली इम्पेयर्ड एथलीट थोड़ा आ रहे हैं, धीरे धीरे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। 4 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्राउन्स मेडल विजुअली इम्पेयर्ड एथलीट ने जीते हैं। देन उसके बाद एशियन पैरा गेम्स, जो 3 एशियन पैरा गेम्स हुए हैं, उसमें 2010 में 7 मेडल जीते थे इंडिया ने, जिसमें 1 सिल्वर मेडल हमारे
विजुअली इम्पेयर्ड एथलीट ने जीता था, जो रामकरण था, जिसको 2012 में अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है, जो पहला ब्लाइंड एथलीट था जिसको अर्जुन अवार्ड मिला था। 2014 में टोटल इंडिया ने 17 मेडल जीते थे, जिसमें 5 विजुअली इम्पेयर्ड ने मेडल जीते थे, 2 सिल्वर 3 ब्राउन, जिसमें कि अंकुर धामा ने अकेले ने 3 मेडल जीते थे। 2018 जो अभी इंडोनेशिया जकार्ता में हुए थे, उसमें 36 मेडल इंडिया ने जीते थे, जिसमें 6 मेडल विजुअली इम्पेयर्ड एथलीट ने जीते हैं। नहीं दोबारा ऑन करो। अभी अवार्ड्स हमारे जैसे कि अभी सभी जानते हैं कि इंडियन स्पोर्ट्समैन को जो अच्छा इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, उनको अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। तो सेम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है, हमारे पैरा स्पोर्ट्स में 2 एथलीटों को दिया गया है, देवेंद्र झाझड़िया एंड दीपा मलिक। पद्म श्री 5 पद्म श्री अवार्ड जीत चुके हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड 3 द्रोणाचार्य अवार्ड जीत चुके हैं, जिसमें मेरा एक खुद का नाम है। मैं अपने आप को इंडियन ब्लाइंड एसोसिएशन से जोड़ के देखता हूँ, तो इसलिए मैं ब्लाइंड एसोसिएशन के लिए काम करता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि विजुअली इम्पेयर्ड में एक द्रोणाचार्य अवार्ड जीता है। अर्जुन अवार्ड अभी तक पैरा स्पोर्ट्स में 19 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, जिसमें कि हमारे 2 ब्लाइंड पैरा एथलीट्स हैं। हम चाहेंगे कि आने वाले टाइम में ज्यादा से ज्यादा ब्लाइंड एथलीट और अर्जुन अवार्ड जीतें। थैंक यू रामदास जी, मेरा प्रेजेंटेशन पूरा हुआ। Yeah, sorry sir, sorry for the interruption. Thank you so much again, Dr. आने वाले Satyapal. टाइम में मैं और चाहूंगा सभी आने वाले टाइम में हमारे इंडियन विजुअली इम्पेयर्ड एथलीट, हमारी इंडियन ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन वर्ल्ड लेवल पे, ओलंपिक लेवल पे ऐसा प्रदर्शन करें कि लोग देखते रह जाएं, और हम ऐसे यूनिटी के साथ, ऐसी मोटिवेशन के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ के काम करेंगे। किसी भी ब्लाइंड एथलीट्स को कभी भी कुछ प्रॉब्लम है, कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। रामदास जी, ओवर टू यू। thank you so much sir. We have some questions. We जी। also give you the chance to other audience also. We have 2 questions majorly which we got. One I would like to answer from Dr. Satyapal. ये मीना मलिक जी का क्वेश्चन है शायद। ये पूछना चाह रही हैं साइकिलिंग के बारे में, कि साइकिलिंग को लेकर के क्या स्कोप है, और स्केटिंग में अगर ये करना चाहें तो ये क्या कर सकते, इनका एक आंसर करेंगे प्लीज। हाँ जी, जैसे कि स्टार्टिंग में ही बताया था, स्केटिंग कोई ओलंपिक स्पोर्ट्स नहीं है, वो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स विजुअली इम्पेयर्ड के लिए नहीं होता है। साइकिलिंग एक स्पोर्ट्स होता है। अभी तक इंडिया में कोई भी विजुअली इम्पेयर्ड एथलीट साइकिलिंग नहीं करता है। अगर आपने सोचा है, आप स्टार्ट कीजिए, हम आपके लिए कोशिश करेंगे आपके लिए कोई फैसिलिटी क्रिएट कराएं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में जब लॉकडाउन के दौरान आप करते रहिए, लॉकडाउन के बाद आप जब ट्रेनिंग करेंगे तो आप कांटेक्ट में रहिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कराए। और दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी स्टेडियम जो ITO पे है, IGI स्टेडियम, उसमें साइकिलिंग का ट्रेनिंग की जाती है। सॉरी मैम, ये मानवी बत्रा जी का क्वेश्चन था, एक नाम में मेरे से मिस्टेक हुई। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय हार्टेस्ट अपॉलॉजी। और एक दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास पेने मोटा जी का क्वेश्चन है कि ये इब्सा के इवेंट से जुड़ना चाहते हैं, इब्सा के टच में कैसे रह सकते हैं, और ये नेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जनरल सेक्रेटरी फ्रॉम इंडियन ब्लाइंड एसोसिएशन डेविड सर प्लीज इनको आंसर करेंगे तो इनको भी अच्छा होगा। नमस्कार सबको। इंडियन ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन की इस वेबिनार में आप सबका स्वागत है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमें मेल द्वारा। हमारी जो ईमेल आईडी है वो आप हमें इसमें मैसेज करेंगे तो हम आपको मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको बता सकता हूँ indibsa@gmail.com। इस मेल आईडी में आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आप संस्था से हैं तो संस्था के बारे में क्या कार्य कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में किस क्षेत्र में कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं, ये सारी डिटेल आप हमें भेजेंगे। हम आपके आगे की जो कार्रवाई है उसके बारे में जानकारी जरूर आपको देंगे। और अदरवाइज हमारी फेसबुक पेज है और वेबसाइट है, दोनों में हमारी
जो कांटेक्ट डिटेल्स है अवेलेबल है। कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। और अगर किसी और के क्वेश्चंस हैं, पीपल में आस्क नाउ। हम लोग कोशिश करेंगे कि 2-3 क्वेश्चन लें, तो ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड प्लीज मेक योर क्वेश्चन शॉर्ट। और आप जिससे पूछना चाहें, अंकुर जी भी हैं, सत्यपाल सर भी हैं, तो आप यू कैन फ्री टू आस्क नाउ। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर टेक्निकल टीम, प्लीज अनम्यूट ऑल। मैं डॉक्टर सत्यपाल से एक सवाल करना चाहूंगा। अगर व्यक्ति अपने घर में इस लॉकडाउन के दौरान वॉकिंग करता है, ब्रेथ वॉक करता है या जॉगिंग करता है, कम से कम कितने समय के लिए करना चाहिए? देखो, ये इसके लिए कोई टाइम नहीं है सर, क्योंकि आपके इवेंट के ऊपर, हम अभी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, आज हम फिटनेस की बात नहीं कर रहे हैं। जिस इवेंट के अकॉर्डिंग आपको वॉकिंग करना है या अपना वर्कआउट उसी के अकॉर्डिंग प्लान करना है। अगर डिस्टेंस रनर है तो उसके लिए तो 2 घंटे भी कुछ भी नहीं है। स्प्रिंटर है तो 20 मिनट्स भी काफी है। मिडिल डिस्टेंस रनर है तो उसके लिए 1 घंटा है। तो अकॉर्डिंग टू इवेंट आपका डिपेंड करता है कि आपको इंडोरेंस वर्कआउट कर रहे हैं, आप थ्रोवर हैं या जंपर्स हैं। और बेसिक फिटनेस के लिए, जैसे हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए मिनिमम कम से कम 45 मिनट जरूर होना चाहिए। मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ थोड़ा सा, सभी एथलीट्स के लिए भी अच्छा रहेगा। हमारी बॉडी का एक एनर्जी सिस्टम होता है। जब हम ट्रेनिंग कोई भी 10 सेकंड तक की एक्टिविटी करते हैं तो हमारी मसल्स का जो एटीपी होता है उसी पे हम काम करते हैं, उसी से वो बर्न होता है और उसी से हमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। 10 सेकंड से 30 मिनट तक कोई भी काम करते हैं तो हम पहले फिर ग्लूकोज पे काम करते हैं। पहले हमारा ब्लड ग्लूकोज, फिर लीवर ग्लूकोज काम करते हैं। तो ऐसा मानना है, ऐसे रिसर्च है कि 30 मिनट तक हम ग्लूकोज पे काम कर सकते हैं। अगर हम 30 मिनट्स तक की डेली वॉकिंग कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, देन उसके बाद सेम हम डाइट खा ले रहे हैं, तो हमारी फैट कम नहीं होगा, हमारा फिटनेस लेवल वही रहेगा और हमारा वेट भी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि हमारी भूख अच्छी लगेगी, हमें एक्सरसाइज करने पड़ेगी तो बढ़ता चला जाएगा। तो मेरा मानना है कि 45 मिनट्स कम से कम, 45 मिनट कम से कम आपको एक्सरसाइज करना। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। एनी अदर क्वेश्चन? सत्यपाल सर, एक मानिशी मित्तल जी का सवाल है कि स्पोर्ट्स में जाने के लिए एज का क्या कोई लिमिटेशन है, अगर है तो क्या है, और स्विमिंग में क्या स्कोप है? स्पेशली स्विमिंग का पूछना चाह रहे हैं कि स्विमिंग में क्या स्कोप है। देखो, स्पोर्ट्समैन की कोई एज नहीं होती, पहली बात। एक आपका बेस्ट जो परफॉर्मेंस होता है 20 से 30 के बीच में, आप बेस्ट परफॉर्मेंस कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स करने जा रहे हैं, ना कि रिक्रिएशनल स्पोर्ट। हाँ सर। तो ह्यूमन बॉडी जो रिएक्ट करती है वो 20 से 30 इयर्स के बीच में ही आप बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अब इसको अगर मैंने अपना मैसेज डालना है तो कमेंट में दो देख, so I am later blind. I am 39 years old. I am later blind person. I want to join. I want to join sport. 39 इयर्स के आप ज्वाइन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जब दीपा मलिक 45 साल की उम्र में ओलंपिक में मेडल जीत सकते हैं, तो आप भी जीत सकते हैं। हेलो। हाँ जी सर, आयु सर सुन रहे हैं आप? मैंने आपको बता दिया है कि आप 39 इयर्स के हैं, कोई बात नहीं। आप जब 45 साल की उम्र में, 48 साल की उम्र में दीपा मलिक मेडल जीत सकती है, तो आप भी जीत सकते हो। जी सर, लेकिन सर वही कोचिंग और ट्रेनिंग फिर यहाँ चंडीगढ़ में सर? चंडीगढ़ में कर सकते हैं, हर जगह फैसिलिटी है, आप ढूंढोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। चंडीगढ़ में बहुत सारे, अगर स्विमिंग करना चाहते हो तो स्विमिंग पूल है, और अगर आप एथलेटिक्स करना चाहते हो तो बहुत सारे एथलेटिक्स ग्राउंड है। नहीं सर, स्विमिंग तो जैसे सीखी है, लेकिन स्पोर्ट्स में स्विमिंग का तो कोई आता नहीं है सर ऑप्शन, जैसे कोई पैरा ओलंपिक्स वगैरह जो आप बता रहे थे अभी। होता है, ओलंपिक्स में स्विमिंग होता है, बहुत अच्छे लेवल पे होता है।
हमारी एक कंचन माला पांडे ब्लाइंड स्विमर जो अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं, जो एशियन भी खेली हैं और वर्ल्ड चैंपियनशिप भी खेली हैं। जी सर। और सर उसमें फिर कोई एज लिमिट नहीं होती? अच्छा, अचीवमेंट होती क्यों नहीं होती है? एशियन गेम में मेडल जीतोगे आपको बहुत कुछ मिलेगा। सर एज लिमिट, एज लिमिट। एज लिमिट कुछ नहीं, आप परफॉर्मेंस आपकी एज है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा परफॉर्म करोगे तो अच्छा। सर मैं एक बार इंटरप्ट करूंगा थोड़ा सा। मैम चंडीगढ़ में सेक्टर 26 में वहां हाँ पर जी एक सर। इंस्टीट्यूशन फॉर द ब्लाइंड है, यू जी मे जी आल्सो कांटेक्ट विद देम, जी सर। and this institution is सर also affiliated from Indian Blind Sports Association, जी so you may contact for further details. सर वहाँ मैं जानती हूँ सबको एक्चुअली, लेकिन वहाँ सर जो मतलब ज्यादातर बच्चे क्रिकेट के होते हैं या फिर और गेम्स के अंदर होते हैं और उनकी एज वही अंडर 14, अंडर 19, अंडर 25 यहीं तक के होते हैं सर। तो ठीक है मैम, कोई बात नहीं, आप एक मेल भी लिख सकते हैं इप्सा को, और यू मे इन टच विद अस, तो जी जैसा भी जी कुछ होगा इसके रिलेटेड हम लोग बताएंगे। और ऐसा सर ने आपको बता ही दिया कि इसको एज नहीं है। यस सर। रामदास, मैं थोड़ा इसको क्लैरिफाई करूं। सेक्टर 29 में जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड, वहाँ का जो कोच है राकेश, वो शायद आज हमारे साथ जुड़े हैं। आप उनसे संपर्क करिए, और ही इज अ क्वालिफाइड पर्सन, और वो आपको और बेहतर समझा पाएंगे, क्योंकि वो सामने आपके सामने बैठ के उनसे बात करिए, वो आपको और अच्छी तरह मदद करेंगे। बाकी जैसे रामदास ने बताया, हमारी मेल आईडी है, हम पे आप तब भी संपर्क करेंगे, हम और आपकी डिटेल्स दे पाएंगे। धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू। और ये नाजिर जी शायद ई Sir, सर्टिफिकेट के I लिए have कह one रहे हैं। question. मैम जस्ट वेट, Okay, आपको सर्टिफिकेट, ई सर्टिफिकेट, ये नाजिर जी ने ई सर्टिफिकेट के लिए बोला है, तो आप अपना मेल, एक मेल इब्सा को लिख दीजिएगा, विल प्रोवाइड इट। यस मैम प्लीज। Sir, my question is that how we मैम can get it. प्लीज मेंशन योर नेम फर्स्ट। Sir, my name is Manvi Batra. अच्छा आपने पूछा, Yeah, हाँ। yeah, Yes. yeah. Sir, my question is that how we can get in touch with Satyapal sir. सत्यपाल सर। Hello. डॉक्टर सत्यपाल सर, आर यू देयर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलिए। हाँ, मैम हाँ कुछ जी पूछ sir. रही है। Sir, my question is. हाँ जी। Hello. Yeah, sir. So my question is how we can get in touch with you for training regarding like in cycling field. साइकिलिंग, Yeah. साइकिलिंग के लिए आपको दिल्ली में आना पड़ेगा। Sir, I stay in Delhi only. अच्छा, दिल्ली में आपका अपने आईजी स्टेडियम में जब लॉकडाउन खुल जाएगा तब आप आईजी स्टेडियम में कर सकते हैं। Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Any other question? So, any other question? No? No. No. Okay. So, I think this is the time. Already we are running with the time. So, it is the time to sum up it. So, on the behalf, I would like to express my heartiest thanks to everybody for the Executive Committee of Blind Relief Association, Indian Blind Sports Association, to organizing this this very good webinar, and also our technical team. They are working behind it, and also I would like to thank to Dr. Mr. Satyapal, who shared para sports technical as well as the techniques, how the visually impaired can even work out in this during lockdown. It is a very crucial time, we know everybody and then of course my young friend, very well known Ankur Dhama, he shared his own experience, which 100% going to be useful for everybody, especially for visually impaired, because sometime हम लोग फेस करते हैं कि जनरली विजुअली इम्पेयर्ड फील्स कि हम अकेले कैसे कर सकते हैं. So now Ankur Dhama is an example for everybody. Sorry? एक क्वेश्चन है सर, पूछ सकता हूँ सर? हाँ पूछ लीजिए सर, हम लोग जल्दी पूछिए प्लीज. हाँ सर, आपने, मैं पीनव बात कर रहा हूँ मुंबई हाँ, से. आपने ईमेल आईडी बताया था जिसपे हम डिटेल भेज सकते हैं, क्या वो ईमेल आईडी मैं फिर से जान सकता हूँ? INB हाँ जी IBSA@gmail.com. एक सेकंड. हम अब एक काम करते हैं, अभी चैट बॉक्स में लिख के भेजते हैं, यू कैन नोट इट. ओके सर, ठीक है. और आप हमारा फेसबुक भी लाइक कर सकते हैं.
जी जी तो वहां पे आपको सारी डिटेल्स मिल सकती हैं। अदरवाइज indibsa@gmail.com, INBIBSA ind इंडिया वाला ind। So before closing this session, I would also like to request you to everybody, please be in touch. You may like our Facebook page for further details, and we are planning to come up with new webinars also with new topics, very attractive topics, very attractive sessions we are going to do. So please be in touch, and hope everybody like this session. Thank you for everybody. Thank you so much. लेकिन का कोई फीडबैक फॉर्म भी आया? Sorry? फीडबैक फॉर्म आया कोई? indivasa@gmail.com। क्या करें? कुछ है? बताना है जरूर। करना है इसका कुछ आया? नहीं अगर मतलब आपको कोई मैसेज सेंड करना हुआ है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। हाँ दे दिया, मैं Thank you, बोल दिया thank you. इसलिए। Thank you. बस मीटिंग एग्जिट कर देते हैं फिर। जी हटा दे, हटा दे कैमरा। Technical team, please exit the meeting. बस हो गया खत्म। ये तो फीडबैक फॉर्म तो नहीं आया? आया तो है। फीडबैक फॉर्म तो ना था वो। क्या तो